جب کچھ نہیں تھا، ایک انسانیت کا اللہ تھا اور ایک انسانیت کا باپ آدم تھا۔ آدم علیہ السلام عرش سے فرش پہ آ رہے تھے، سرکار آدم کو سزا ہو گئی۔ زمین آسمان کے درمیان حضرت آدم تھے اور اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے فرمایا جبرائیل ایک کام کر۔ انکل نگاہ خان جبرائیل نے فرمایا میرے مالک حکم کر۔ نگاہ خان صاحب تو جبرائیل نے کہا میرے مالک حکم کر۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل دیکھ لے سامنے آدم زمین پہ جا رہا ہے، اسے جا کے ایک بات کہنی ہے۔ جبرائیل نے کہا میرے مالک حکم کر۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں کے سربراہ جا کے کہہ دے آدم سے حسن ظن میں تجھے بہت دیر ہم نے رکھا ہے اپنی تہذیب کے چمن میں، لباس بخشا تو عام سونپا ہر ایک نعمت بھی دی عدن میں۔ جبریل جا کے آدم سے کہتے جہان انوار ترک کر کے چلا ہے تو خاک کے وطن میں، اور جبریل جا کے آدم کو یہ بات کہہ دے میں اللہ ہو کے حکم دے رہا ہوں زمین پہ کچھ بھی نہ ہو سکے تو فقط یہی کام یاد رکھنا، محمد حسنین فاطمہ اور علی کا تم نام یاد رکھنا۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ آدم زمین پہ جا رہے تھے، اللہ نے فرمایا آدم ایک لمحے کے لیے رک جا۔ سرکار آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے مالک حکم کر۔ اللہ کی آواز آئی تجھے فرشتوں کی بارگاہ میں دیا بہت افتخار آدم، ہر ایک طاقت کا سر جھکا کے تجھی کو بخشا وقار آدم، تجھے بھی ہم سے بہت عقیدت ہمیں بھی ہے تجھ سے پیار آدم، مگر یہ جنت کا قاعدہ ہے یہاں کے کپڑے اتار آدم، مگر یہ جنت کا قاعدہ ہے یہاں کے کپڑے اتار آدم۔ اللہ نے فرمایا آدم بہت سجائے ہیں تیرے تن پہ، یہ ہم نے خلد بری کے کپڑے، زمین پہ جانے لگا ہے پیارے وہاں پہننا وہیں کے کپڑے، زمین پہ جانے لگا ہے پیارے وہاں پہننا وہیں کے کپڑے۔ آدم کیا جی جی بڑی مہربانی میرے مالک، میں کپڑے جنت کے کپڑے جنت میں رکھ تو دیتا ہوں مگر میرے اللہ خلیفۃ اللہ ہوں، میرے مالک انسانیت کا بابا ہوں، میرے مالک تیرا پہلا نبی ہوں، میرے مالک ایک بات کا جواب تو دے، جو تو نے کہہ دیا وہ ہو گیا، مگر میرے مالک گزارش یہ کرنے چاہ رہا ہوں عظیم جنت کے اس خزانے میں خود بتا میرے پاس کیا ہے، جہاں خلافت بھی سونپ دی ہے پھر اس کے آگے لباس کیا ہے۔ اللہ کی آواز ہے یہ نور کے پارچے ہیں آدم بلند تر ہے مقام ان کا، بہت مدت سے کر چکا ہوں یہاں میں واجب قیام ان کا، ازل سے مشتاق ہے یہاں بھی ہر ایک علیہ السلام ان کا، کہاں زمین اور کہاں یہ کپڑے نہ لے پیارے تو نام ان کا۔ آدم نے کہا میرے مالک خیر تو ہے، اتنی بڑی جنت ہے، چھوٹا سا نوری لباس اگر خاک کے وطن میں چلا جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ میرے مالک تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، میرے مالک تو جو ہر چیز کا خلق کرنے والا ہے، میرے مالک اتنی بڑی جنت میں سے ایک لباس چلا بھی جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا خبردار یہ بات دوبارہ نہیں کرنی، کہاں زمین اور کہاں یہ کپڑے نہ لے پیارے تو نام ان کا۔ آدم نے کہا کیوں؟ اللہ نے فرمایا آدم یہ بات یاد رکھنا، کہاں زمین اور کہاں یہ کپڑے نہ لے پیارے تو نام ان کا۔ آدم نے کہا ٹھیک ہے میرے اللہ جیسے تو نے حکم کیا میں ویسے کر دیتا ہوں۔ آدم نے جنت کے کپڑے جنت میں رکھ دیے، آدم درختوں کے پتے تن پہ سجا کے زمین پہ آ گئے۔ اب وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، جنت کا نوری لباس جنت میں رہ گیا، آدم زمین پہ آ گئے۔ 1000 سالوں کے بعد ایک شب کہا یہ بچوں نے اپنی ماں سے، 1000 سالوں کے بعد ایک شب کہا یہ بچوں نے اپنی ماں سے، ہر ایک آنگن میں عید اترے گی کل شرافت کے آسماں سے، سبھی کے بچوں کا تن سجے گا حسین رنگوں کی کہکشاں سے۔ بچوں نے کہا اماں ہمارے کپڑے نئے نہ ہو تو ہمیں حجاب آئے گا جہاں سے۔ دونوں شہزادوں نے ماں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا زیب شاہ جی جناب کو تو پتا ہے اماں ہم ہی تو ہیں بس ولی کے بیٹے، مباہلہ میں نبی کے بچے، کسا کے نیچے علی کے بیٹے۔ خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو، کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری تسبیح و اللہ کو۔ فرشتوں نے کہا کیوں؟ فرمایا کہا ہے کچھ میرے پیاروں نے میری ہی عصمت کی آبرو کو، نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو، نہیں ہے ممکن نہیں ہے ممکن بطول ٹالے اصغر خان، نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو۔ جبرائیل جی میرے مالک حکم کر۔ اللہ نے فرمایا جبریل ایک کام کر، امین رازے وہی تو ہے تو۔ وکیل صاحب درکان دھرے آئے۔ اللہ نے فرمایا جبریل امین رازے، یہ چھوٹا مرتبہ نہیں، جبریل امین رازے وہی تو ہے تو، میں اور عزت بڑھا رہا ہوں،
तुझे मैं इस शर्फ से खुल्द के मालिकों का दर्जी बना रहा हूँ। वाह 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 वाह। तुझे मैं इस शर्फ से खुल्द के मालिकों का दर्जी मालिकों का दर्जी बना रहा हूँ। जिब्रील ने कहा मेरे मालिक मुझे इल्म ही नहीं, मुझे पता ही नहीं आखिर कपड़े कैसे सीते हैं। मेरे मालिक मैं कपड़े कैसे सीऊं? अल्लाह ने फरमाया मैं बताता हूँ, हमारी जन्नत में घूम फिर के तू सबसे बेहतर मकान ले ले, अगर हो महसूस कोई जरूरत तो खुल्द के पासबान ले ले, कि भला युताहिरा की मशीन थाम और सौबे अथर का थान ले ले, मिला का धागा हया की सुई ये सारा नूरी सामान ले ले। वाह 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 वाह। मिला का धागा मिला का धागा हया की सुई ये सारा नूरी सामान ले ले, ये सारा नूरी मिला का धागा हया की सुई ये सारा नूरी सामान ले ले, और मेरी रजा की सनद समझ के, मेरी रजा की सनद। वकील साहब तुसी आप माशाल्लाह कालम निगार हो बादशाह, मेरी क्या कहने मेरी रजा की बावाज़े बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरी रजा की सनद समझ के, आवाज़ तौहीद आई, मेरी रजा की सनद समझ के ये सारा नूरी सामान ले ले, और मेरी रजा की, पीर इमरान रजा शाह साहब, मेरी रजा की सनद समझ के वकार खुल्दे बरी पे ले जा, नफीस अतहर हसीन कपड़े सुबह से पहले जमीन पे ले जा। वाह 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 वाह। आसमान पे मजमून जरा उठावे, निगाह खान साहब बाबा इमरान शाह जी ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਚੋਂ ਨਾਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਰਮਾ ਲੋ ਕੋ ਹੱਲ ਜੁੰਦਾ इमाम ज़माना अपनी ज़ुबानी रखने, सुबह से पहले ज़मीन पे ले जा। बा मुश्ताक यही सरकार दुआ फरमाए सो, आसमान पे ये हालात थे। जमीन पे क्या माहौल था? बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। दोनों शहजादों ने कहा अम्मा सुबह ईद है हमें कपड़े चाहिए। दोनों बादशाहों ने कहा अम्मा सुबह ईद है हमें कपड़े चाहिए। तो मेरी शहजादी ने दोनों शहजादों को, दोनों बेटों को, हसनैन करीमैन शरीफैन नय्यरैन नूरैन इमामैन पाक सरकार ने जब अपनी वालिदा गिरामी से कपड़ों का तकाजा किया, तो मेरी शहजादी ने दोनों बच्चों को गले से लगा के फरमाया मेरे बच्चों परेशानी वाली बात ही कोई नहीं, तुम्हारा जाकिर जहां का खालिक तुम्हारे नौकर नबी रहे हैं, अज़ल से कुदसी तुम्हारी उल्फत के जाम भर भर के पी रहे हैं, तुम्हारे दुश्मन जिये तो मुर्दा मलंग मर के भी जी रहे हैं, गली समझ के तुम्हारे कपड़े इरम के खैयात सी रहे हैं। मेरी शहजादी ने फरमाया मेरे बेटो परेशान नहीं होना, मैं फातिमा वादा कर रही हूँ वहाँ की चीजें यहाँ पे आए, मैं आज से रस्म डाल दूंगी, सुबह से पहले ना आया दर्जी तो नौकरी से निकाल, सुबह से पहले ना आया दर्जी तो नौकरी से। राजा दैर साहब मेरी शहजादी ने फरमाया सुबह से पहले ना आया दर्जी तो नौकरी से निकाल दूंगी। अब जमीन पे ही हालात थे, आसमानी मंजर क्या था? जिब्रील ने कहा मेरे मालिक कपड़े तैयार हो गए, मेरे मालिक कपड़े तैयार हो गए, मेरे मालिक मैं जमीन पे लेके जाने तो लगा हूँ, मगर मेरे मालिक एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। 1000 साल कबल एक दिन यहाँ से आदम चला था मौला, तुम्हारी जन्नत से सिर्फ उसने एक लिबास पहना हुआ था मौला, लिबास जन्नत पहन के मत जा, ये तुमने उससे कहा था मौला, यहाँ की चीजें यहाँ रहेंगी, ये ज़ाब्ता तय हुआ था मौला। जिब्रील ने कहा मेरे खालिक मेरी ये हैसियत तो नहीं, मगर मेरे मालिक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ से कुछ भी ना जा सकेगा, ये तेरे कानून है अज़ल के, फिर आज क्यों भेजता है कपड़े इरम के आईन को बदल के? अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तू आदम का और हसनैन का मुआवजा करता है? अल्लाह की आवाज़ आई इन्हीं के कदमों का मौजज़ा था जो उसको इरफान था हमारा, नजर अल्लाह ने आज हुसैन आखिरी बंदे तक सिर्फ तवज्जो तकसीम ना हुए। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तू आदम अलैहिस्सलाम का और हसनैन का आपस में मुआवजा करता है? वो कहाँ और ये कहाँ, इन्हीं के कदमों का मौजज़ा था जो उसको इरफान था हमारा, ये दोनों बच्चे हमारे प्यारे हैं उस पे एहसान था हमारा। उतार आदम लिबास से जन्नत जरूर फरमान था हमारा, मगर ये जन्नत के बादशाह हैं वो सिर्फ मेहमान था हमारा।
वाह 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 माशाल्लाह बहुत ढेर सारे वाह 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 अगर ये जन्नत के बादशाह हैं, वो सिर्फ मेहमान था। माशाल्लाह है आपकी विला मेरी तख्लीक का सबब। किबला काबा सरकार मौलाना गजनफर काज़मी साहब के हुक्म के मुताबिक मालिक की तौफीकात में मजीद इजाफा फरमाए। आमीन आमीन। मालिक वलीउल्लाह सर ट्रस्ट की खैर फरमाए। बड़ा लुत्फ आ रहा है ज़ियारत का। इमाम ज़माना अपनी ज़बान में रखें। जज़ाकल्लाह आमीन जज़ाकल्लाह। है आपकी विला मेरी तख्लीक का सबब। वाह वाह। इमाम हुसैन पाक सरकार का ज़हूर हुआ और जिस झूले में आराम फरमाते थे ना मेरे मौला, उस झूले के अतराफ में अंकल याकूत लगे हुए थे, यमन के नहीं अदन के। वाह 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 वाह। जी रसूल खुदा ने 5 दिन इस बात को महसूस फरमाया कि जिब्राइल राजा साहब हैदर भाई रोज जमीन पे आते हैं। वाह वाह। हजरत जिब्राइल रोज आके बादशाह हुसैन के झूले को भी झुलाते हैं और बड़ी ललचाई हुई निगाहों से उन याकूतों को भी देखते हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 दिन गुजर गए। रसूल खुदा रोज इस बात को महसूस फरमाते कि जिब्राइल झूला भी झुलाते हैं और जो इमाम हुसैन पाक सरकार अलैहिस्सलाम के झूले में याकूत जड़े हुए हैं, उन याकूतों को भी देखते हैं। वाह वाह। एक दिन रसूल खुदा ने जिब्रील को बुला के फरमाया, जिब्रील रोज आता है, रोज याकूतों को भी देखता है। जिब्रील याकूत चाहिए तो तू ले जा। जिब्रील तेरे लिए महंगे होंगे, हमारे लिए नहीं। याकूत चाहिए तो तू ले जा। जिब्रील ने हाथ बांध के कहा, या रसूल अल्लाह मुझे याकूत नहीं चाहिए, या रसूल अल्लाह मुझे एक छोटी सी इज्जत चाहिए। रसूल ने फरमाया, कह रहा हूँ ना हुसैन के झूले के याकूत हैं, ले जा। नहीं याकूत नहीं, इज्जत चाहिए। फरमाया क्या बामुश्ताक चाहिए सरकार, जरा गल दा लुत्फ ते नफासत भी क्या है, जरा गल दा लूट भी क्या है। जिब्रील क्या चाहिए? याकूत चाहिए तो ले जा। उसने कहा याकूत नहीं चाहिए या रसूलुल्लाह, इज्जत की चाहिए। है आपकी विला मेरी तख्लीक का सबब। आपकी विला है, आपकी विला मेरी तख्लीक का सबब। नौकर हूँ, अब्द हूँ, मेरी इज्जत बढ़ाइए। और खुश होके खेलता है ना जिनसे अली का लाल, याकूत की जगह मेरी आंखें लगाई। खुश होके खेलता है ना जिनसे अली का लाल, माशाल्लाह, याकूत की जगह मेरी झुक गई इसलिए लकड़ी पे जबीन फुतरस। झुक गई इसलिए लकड़ी पे जबीन फुतरस। उसको मालूम था लकड़ी में वली रहता है और मातमी सीनों से बीमार को मिलती है शिफा। दिल के झूले में हुसैन इब्न अली रहता है। दिल के झूले में हुसैन इब्न, दिल के झूले में 3 शाबान थी। सरकार जिब्राइल गुजर रहे थे, इमाम हुसैन पाक सरकार के घर में से एक झूला पड़ा हुआ नजर आया। झूला नजर आया। जिब्रील ने कहा झूला किधर? झूले ने कहा जिधर तू मैं भी उधर। वाह वाह। अब आगे से पढ़ने वाले की, खतीब की, शायर की तरतीब होती है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। जिधर तू मैं भी उधर। झूले ने कहा जिब्रील तू इस दरवाजे का पुराना मुलाजिम है। झूले ने कहा मुझे इत्तला मिली है कि आज इमाम हुसैन पाक सरकार ने मुझ में आराम फरमाना है। माशाल्लाह। क्या जिब्राइल तू मुझे बता सकते हैं हुसैन किस बादशाह को कहते हैं? जी अपने परों को गरूर की अंकड़ाई दे के जिब्रील ने कहा हुसैन का झूला सुन, हुसैन उस बादशाह को कहते हैं जिसके सोने का मयार कम से कम जिब्राइल के पर हो। जिसके सोने का मयार कम से कम जिब्राइल के पर हो। झूले ने कहा जिब्रील क्या खास बात है तेरे परों में, सिवाय इसके कि हुसैन तेरे परों पे आराम फरमाते हैं? जिब्रील ने कहा झूला मुझे पहचान, नवीद शब्बीर पा के मैंने महकते अंबर में पर भिगोए। वाह वाह। इसीलिए तो ये पर लिए हैं कि इन पे ज़हरा का लाल सोए। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये बात की तब हुसैन के झूले का जवाब सुनना। झूले ने कहा जिब्रील तेरी अपनी शान है मगर मुझे पहचान, यहाँ जरा सा इंसाफ कर। मैं आसिया की शरीफ चादर के सुर्ख तारों का मौजज़ा हूँ। हुसैन सोएंगे मुझ में एक दिन खुशी से मस्ती में झूमता हूँ। कभी कभी तो मैं इस तसव्वुर में अपने तारों को चूमता हूँ। तेरे परों की मजाल क्या है, मैं ऐसा उम्दा बुना हुआ हूँ। झूले ने कहा जिब्रील तेरे परों की मजाल क्या है, मैं ऐसा उम्दा बुना हुआ हूँ। जिब्रील ने कहा झूला गरूर कर रहे वो भी जिब्रील के सामने,
झूले ने कहा जिब्रील गरूर बनता है मेरा करना, वाह वाह गरूर बनता है मेरा करना, गरूर करना था बस किया है कि मेरी डोरी को सबसे पहले जनाब ज़हरा ने मस किया। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह